Hello everyone, welcome you all. Guys, as you know that your B.Ed first year date sheet has come and your exams are going to be started from 15th May, from Friday, right? So those who have taken the admission through my guidance, through my consultancy, you all know that you have got the full-fledged notes of all your 7 papers. You have got the classes also. Even I have taken your test also. In spite of all the things, today I'm again starting the exam preparation classes. So that will be beneficial for those who want to start during the exam or just before the exam, right? And for those who have already started, so that will be the, you will get the revision, okay, through this lecture. So we start our lecture. We start from the first date sheet, right? So first see your date sheet. So first exam is on the 15th May, as you see on the screen. 15th May, right? Childhood and growing up. Okay. Second exam, contemporary Indian and education, that will be on 18th May. Third exam is your learning and teaching, will be on 20th May. And fourth exam, fourth you have the 2 exams, 4th A and 4th B. Both exam will happen on the same day. Okay. You can see the date 4th A and 4th B. Just see 22nd May, 4th A and 4th B. Okay. First exam will be of 3 hours, 80 marks. Second exam will be of 3 hours, 80 marks. Third exam will be of 3 hours, 80 marks. 4th A and 4th B exams are of 1.5 hour and 1.5 hour. Okay. In a 3 hours, you have to give your 2 exams on the same day. 4th A and 4th B. 4th A is language across curriculum and 4th B is understanding discipline and subject. Okay. And your last 5th exam, which is a compulsory exam, gender, school and society, is on 25th May. It is again 1.5 hour. Okay. And total marks are of the 40. Rest of your 2 teaching subjects. Okay. Mostly students having the SST and English. So teaching of English, pedagogy of English would be on 28th. Pedagogy of English, this is the 28th, and pedagogy of social science is on 3rd June. Okay. Others having the different combinations you can see in the date sheets. So today in this lecture we will discuss the paper 1. Okay. In a brief, this is the exam preparation class. I will tell you the important questions. Okay. In brief, so you have to focus on those important questions. Even I'm telling you, you have to learn only those questions. Instead of going, through all the books of, 300 pages, okay, I have already provided you the notes. You have to learn those important questions, right? First, we see the syllabus. Okay. After the syllabus, we will discuss the, our paper 1. Okay. First, we see the syllabus. So, this is your syllabus. I'm going to open the syllabus. This is a folder, and in the document, and syllabus is on your, this is your syllabus. So paper 1 is your childhood and growing up. Okay. This paper would be of 3 hours and 80 marks, right? So just you can see the syllabus. This one, the syllabus, childhood and growing up. Okay. So syllabus having the 4 units. Right? Unit 1, Unit 2, Unit 3 and Unit 4. In every units, you will get the 2 questions. Out of the 2 questions, you have to attempt the 1 long questions. Okay. So basically, you have to attempt 4 long questions and 4 short questions. Okay. Sometimes 2-3 questions come from the same unit. Okay. So first we see the syllabus, right? Then we will go ahead. Okay. Just see the syllabus. In a unit 1, just you can see that. So guys, as I have already told you, today I am going to tell you the important questions. Only you have to learn those important questions, right? And the same questions will come. Okay. I am giving you guarantee. So first is growth and development.
Okay, so you have to learn growth and development, principles of growth and development, or factors. What are the factors that affecting the growth and development? Okay, first question. Second questions can come, for example, adolescent is the stage of stress and storm. This definition is given by the Stanley Hall, right? So in the adolescent, okay, 2-1, right? Parenting and personality, okay, ये long questions कभी नहीं आता है, okay? Parenting and personality में से आपको always short questions ही आएगा, right? तो ये 2 questions आपने ये करने हैं first unit में से, okay? Already I have told you the questions. Second आप देखिए theory of child development, okay, unit 2. Under unit 2 you have the 3 theories. So first I want to tell you, first you have to see the syllabus, okay? Before directly going to the notes, it is important to see the syllabus, right? In the second unit you have the 3 theories. One, you have the theory of Piaget development, okay? Second, Erikson theory. Third is Kohlberg theory, Kohlberg theory of moral development, okay? अब इन तीनों में से आपको 2 theory करनी है. Number 1, you have to do the Piaget theory of cognitive development. उसकी 4 stages हैं, right? Already I have taken the classes, I have given you the notes, right? सभी ने करनी है, क्योंकि अगर पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस उठाते हैं तो 9 बार Piaget theory आई हुई है, ठीक है? और एरिक्सन की थ्योरी, 2 थियरी करनी है आपने यूनिट 2 में से भी, ओके? नेक्स्ट वी डिस्कस थर्ड यूनिट. थर्ड यूनिट में देखो आपका क्या है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, मेमोरी है, एंड द मेंटल प्रोसेसेस है. समटाइम्स आपने देखा होगा 4th यूनिट में से ही एग्जामिनर है ना क्वेश्चंस डाल देता है थर्ड यूनिट के भी, ओके? बट आपने थर्ड यूनिट में से भी इंटेलिजेंस का जरूर कर लो. इंटेलिजेंस की आपकी 2 ही थ्योरी है यहां पर, राइट? एक तो थ्योरी है यहां पर 2 फैक्टर थ्योरी है एंड द थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, ओके? सेकेंड, यू कैन गो फॉर दी क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी का क्वेश्चंस अगर आ भी जाता है तो ये आता है, यू नो हाउ यू विल फोस्टर द क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, ओके? तो ये भी आपने करनी है. यूनिट 4 आ जाओ. यूनिट 4 बहुत ही इजी है, ओके? आपको लग रहा है कि इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी इजी, ओके? यूनिट 4 में देखो क्या है, what is the syllabus of unit 4? Number 1 is, number first is agencies of socialization. अब आप मुझे बताओ, you know, आपने चाइल्ड को सोशलाइज करना है, ओके? हाउ, वेयर ही विल गेट द सोशलाइजेशन प्रोसेस. बच्चे को मैनर्स, बिहेवियर्स कहां से आता है? इधर आज से 100-150 साल पहले कोई स्कूल ही नहीं था, राइट? तो बच्चा सोशलाइज कैसे होता था? होम, ठीक है, होम से, घर से होता था, पेरेंट्स उसको करते थे, राइट? तो यही तो है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन. और इनको फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गया, मॉस्क हो गए, टेंपल्स हो गए, चर्चेज होगी, तो दीज आर दी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन. तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चंस है. इट ऑलवेज कम. एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में से 4 हैं, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, एंड देयर रोल ऑफ 3 ही है, फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी, ओके? वो नीचे आ गया सोशल एंड कल्चरल चेंज. तो फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी 100% ये क्वेश्चंस आएगा, राइट? कौन कौन सी यू नो एजेंसीज है जो बच्चे को सोशलाइज करती हैं, राइट? तो ये फर्स्ट तो आपने करना ही करना है. सोशल एंड कल्चरल चेंज एज ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट. तो चौथा आ गया ना मैंने, सोशल और कल्चर जो है वो कैसे चाइल्ड की डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं. ये भी बड़े इजी हैं गाइस, 8-10 पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं नोट्स के अंदर, आप उसमें से देख सकते हो, राइट? अब ये देखो, इंपैक्ट ऑफ ए मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट. तो ये सारा चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ही है. और रोल ऑफ ए मीडिया in constructing and deconstructing perception and ways of dealing with above issues. ठीक है, मीडिया कैसे इफेक्ट डालता है बच्चे की पर्सनैलिटी को कंस्ट्रक्ट करने में या डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो ये 3 ही कर लो तो बहुत है इसके अंदर, ठीक है? ये आपने करना है. और अब हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ, राइट? जस्ट सी द पेपर. इसको सिलेबस को वी क्लोज इट, एंड इन द पेपर दिस इज योर लास्ट ईयर पेपर, ओके?
आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द पेपर, वो पेपर आपने जरूर करना है, लास्ट ईयर का पेपर, उसके अंदर भी वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किए हैं, ओके और ये मैंने आपको सॉल्व पेपर भी दे दिया है आपको, यू कैन सी दैट, ये देखिए, ठीक है। पहले अपन लॉन्ग की बात करते हैं, राइट। लॉन्ग क्वेश्चंस में देखो आ गया, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। या क्वेश्चंस क्या आ जाएगा, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। वो 8-9 पॉइंट्स हैं, वो आपने एक्सप्लेन करने हैं, ठीक हो गया। सेकंड देखो, ये हमेशा क्वेश्चंस आता होता है एडोलेसेंट्स के ऊपर, एडोलेसेंट इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ओके, डिस्क्राइब इट, ओके, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जांपल। ये देखो दोनों ही आ गए हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कर जाते हो तो भी वो होता है, ये इसका तो आ रहा ही आना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, राइट। सेकंड नंबर पे आ जाओ, ये देखिए दोनों थियरी आ गई, एरिक्सन की थियरी आ गई, एरिक्सन, और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे, दिस इज द पियाजे थियरी, राइट। तो सेकंड यूनिट में से पियाजे और एरिक्सन करनी है, ऑरली ही याद कर लो। पहले यूनिट में से करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडोलेसेंट, सेकंड यूनिट में से 2 थियरी, पियाजे थियरी एंड एरिक्सन थियरी, ओके। थर्ड आ जाओ, अब इसने फोर्थ में से लेके डाल दिया है, ओके, ये देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए फैमिली एज एन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जांपल। सेकंड सोशल कल्चरल वाला आ गया, देखो, राइट। और फोर्थ यूनिट के अंदर आ गया, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ए मार्जिनलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द सोशल क्लास एंड पॉवर्टी, और नीचे आ गया एक्सप्लेन स्टीरियोटाइपिंग, डिस्कस द रोल ऑफ ए स्टीरियोटाइपिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, राइट। तो फोर्थ वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें से इंस्टेड ऑफ ए 2, ठीक है, 3 क्वेश्चंस आप कर लीजिए, राइट, क्योंकि आपने देखा होगा फोर्थ में से डाल रहा है उसमें, ओके। इवन इंस्टेड ऑफ दिस ना, आई विल गिव यू द 1 क्वेश्चंस पेपर मोर, ओके, टुमारो I will send you the 1 more questions paper, you will get the idea, okay, but almost ऐसे ही पैटर्न आ रहा है, फोर्थ में से ही वो उठा रहा है, ठीक है, इन क्वेश्चंस को लेके, राइट। तो आपका फर्स्ट में अपना डेट शीट अपन डिस्कस कर लिया, सिलेबस हो गया, लास्ट ईयर का पेपर हो गया, और अब ये मैं आपको आई वांट टू शो यू द नोट्स, राइट। सभी के पास नोट्स हैं, ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द नोट्स, यू कैन सी द नोट्स, ये रहे मेरे नोट्स, ठीक है, ये यू कैन सी दैट 110 पेज की फाइल है ये देखिए, राइट। बुक्स के अंदर तो 400-500 पेजेस हैं, इंस्टेड ऑफ दैट ये नोट्स ही आप कर लीजिए। ये देखिए सॉल्व लास्ट ईयर पेपर और एडिशनल नोट्स भी हैं इसके अंदर लास्ट ईयर पेपर के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यू विल सी द सिलेबस, ये देखो फर्स्ट पेज के ऊपर मैंने सिलेबस लगाया हुआ है, सेकंड के ऊपर वही लास्ट ईयर वाला पेपर आपका, ओके। शॉर्ट में से भी आप कर लीजिए, जैसे शॉर्ट हमारा रह गया था ना, लॉन्ग डिस्कस कर लिए थे, तो एक एक क्वेश्चंस आप शॉर्ट में से भी कर सकते हैं, 4 तो आप यही कर लीजिए, 3-4 मैं आपको और डाल दूंगा कल, राइट, सोशल मीडिया के ऊपर ही आप वहां से भी देख सकते हैं, ओके। और इवन वो मैं पेपर डाल दूंगा, उस पेपर के अंदर भी 4 आए हुए हैं, तो 4 आप वो देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग वही करने हैं जो मैंने विच आई हैव टोल्ड यू टुडे, राइट। और ये देखिए ये पेपर है, और ये सारा फिर सॉल्व किया हुआ मैंने आपका ना, यू कैन सी दैट, ओके। ये फाइल ये देखो 7 पेज आ गया, 7 के बाद 8 पेज आ गया, और ये फाइल को लास्ट तक देखेंगे तो ये फाइल आ गई आपकी 110 पेज की फाइल है, ओके। तो अराउंड यू कैन सी 40, 50, 60 पेजेस तक तो आपका लास्ट ईयर वाला पेपर ही सॉल्व है उसके अंदर, सेम ऐसे ही आपको करना है, और उसके बाद कुछ एडिशनल्स दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन वट एवर द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड टुडे, दिस इज द गेस वर्क, गेस नहीं, गारंटी these questions will come, okay। तो you have to first you have to do these questions very well, right। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है which you have to keep in your mind, right। so ये लास्ट सेक्शन हमारा होने जा रहा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का, this thing you have to keep in your mind, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये रहा फोल्डर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का। so guys this is your important instructions which you have to keep in your mind। the number 1 you should know that your date of exam is 15th May Friday, right। timings क्या है, timings of examination is 9:30 to 12:30, but your reporting time is 9 o'clock। but I will suggest to all of you guys, because you are coming from the far away, right, at a very first day you all have to reach around 8:30,
Okay, 1 hour before. Okay, you have to reach. Second, I think you all have got your roll number from your respective colleges. Take the printout of the roll number. Second, you have to take your ID proof. Okay, ID proof, photograph should be there. Okay, वो वाला ID proof हो आपका, जैसे आधार कार्ड हो गया. Otherwise, if you don't have the photo on your ID proof, so you can carry the photo also, right? Next instructions है नंबर 4, कैरी योर वाटर बोतल, ब्लू पेन, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है, आप अपना कैरी खुद करें, ठीक है? अपना वाटर बोतल हो गया, राइट? ब्लू पेन, समटाइम्स पानी का ये आपने यू हैव टू कैरी, है ना? यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज अ इंपॉर्टेंट. ओके, वाटर बोतल यू हैव टू कैरी, ब्लू पेन, पेंसिल, इरेजर यू शुड हैव, राइट? ब्लू पेन तो हो गया क्वेश्चंस को लिखने के लिए. ऑलवेज यू हैव टू यूज द बॉल पेन, राइट? बॉल पेन है आपका लिखने के लिए, राइट? इंक पेन भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्पीड नहीं उससे बनती. बॉल पेन से आपकी स्पीड बन जाएगी, राइट? पेंसिल किस लिए है? पेंसिल से आपने क्या करना है, जितने भी हेडिंग्स हैं यू हैव टू अंडरलाइन द हेडिंग्स, ऑल द हेडिंग्स. ओके, राइट? अब आ जाओ 5th और 6th. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, राइट? 5th एंड 6th, यू कैन सी दैट. 5th क्या है? फॉर ए लॉन्ग क्वेश्चंस. तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसको सुनो ध्यान से. आपके पास 40 शीट्स आएंगी. ओके, यू विल गेट द 40 शीट्स. 40 शीट्स में से यानी कि 20 शीट्स होंगी राइट एंड लेफ्ट को. व्हेन यू सी दैट, तो टोटल वुड बी 40 शीट्स. यू हैव टू फिल द 40 शीट्स विद इन 3 hours, राइट? लॉन्ग क्वेश्चन शुड बी ऑफ 7.5 pages and you have to finish in a 35 minutes. And short question should be of 2.5 pages और 8 या 10 मिनट्स के अंदर आपको फिनिश करना है, राइट? अल्टीमेट गाइज हमारा गोल क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर गोल? गोल शुड बी फुल अटेम्प्टेशन, मीन्स 4 long questions and 4 short questions you have to attempt. And second, 40 sheets should be filled within a 3 hours. तो इन सभी चीजों को आपने ध्यान देना है. एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चंस इजी होते हैं, पेपर थोड़ा लेंदी है. द मोमेंट 9:30 पेपर विल कम, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द पेपर्स. ओके, व्हेन यू विल सी हियर एंड देयर, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा. 35 मिनट्स जैसे ही होते हैं, मान लो एक आधी शीट्स रह गई है, 7.5 7.5 शीट्स नहीं फिल हुई हैं, यू हैव फिल्ड ओनली 6 पेजेस, देन स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ कि भाई मैंने इसको 7.5 पेज ही भरने हैं. ओके, सो आप शुरू से ही अपनी स्पीड बना के चलनी है आपने, राइट? और हाँ, लास्ट में इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट करो सीरियल वाइज ही, ठीक है? 4 क्वेश्चंस विल कम, शॉर्ट क्वेश्चंस, तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस ही करो, ऐसा नहीं लॉन्ग को पहले लग गई, राइट? तो सीरियल वाइज यू हैव टू अटेम्प्ट. पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आप देखोगे 45 मिनट से ज्यादा नहीं देनी है. 8 या 10 मिनट्स के अंदर 2-2.5 शीट्स फिल हो जाती हैं, राइट? तो यू हैव टू गिव 8 or 10 minutes and within 40 minutes या 45 minutes you have to finish your 4 short questions, right? और हाँ, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ऑन द आंसर शीट, जैसे ही आंसर शीट आती है आपने अपना रोल नंबर लिखना है, न्यूमेरिक में अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है? जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो जरूर लिखनी है. समटाइम्स क्या होता है, बंदा भूल जाता है उसको, और लास्ट में जब व्हेन यू विल फिल इट, तो 5 मिनट पहले एक बार पेपर को देख लेना, अंडरलाइन कर देना, कंक्लूजन जरूर देना है. सभी क्वेश्चंस में 2 नंबर तो कंक्लूजन के मिलते हैं, राइट? और हाफ पेज यू हैव टू फिल, राइट गाइज? So thank you so much for this lecture and best wishes to all for your exam. ऐसे ही मैं आपके सेकंड पेपर की भी क्लास लूंगा, थर्ड की भी, फोर्थ की भी, तो टोटल 7 क्लासेस मेरी होंगी ओवरऑल. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वंस अगेन.